بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پروگرام کا آغاز ایک افسوسناک خبر سے، جو کہ ہمارے بہت ہی سینئر صحافی، ہمارے بزرگ جن سے ہم نے بہت سیکھا ہے، جناب ضیاء الدین صاحب، محمد ضیاء الدین، مختلف پاکستان کے جو روزنامے اور موقر ترین اخبارات کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، پاکستان کے بہت سے ادوار دیکھے ہیں ضیاء الدین صاحب نے، جو کہ آج چل بسے ہیں، ہمارے میں موجود نہیں ہے۔ مجھے ذاتی طور پر میرے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ ضیاء الدین صاحب ہمیشہ رہنمائی فرماتے تھے، ہمیشہ بتاتے تھے کہ سچ کے لیے کیسے ڈٹنا ہے۔ خود ضیاء الدین صاحب نے ہر وقت کی جو حکومت ہے اس کو تنقید اس پہ کی ہے، ان کو آئینہ دکھایا ہے جو صحافی کا کام ہوتا ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سارے صحافی اس وقت جو ہیں وہ اپنی جو پیشہ ورانہ جو ان کے فرائض ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ وہ آج نہیں رہے، مگر ان کا پیغام، ان کا جو درس ہے اور ان کا جو سکھایا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ طالب علم جو ہیں، وہ صحافت کے اس میدان کے اندر اپنے تیر آزماتے رہیں گے اور اپنا جگر بھی پیش کرتے رہیں گے۔ ان کو ہمارا سلام، اور اس دعا کے ساتھ کہ وہ پروردگار ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آج کے موضوع کی جانب، جو کہ پہلا موضوع ہماری معیشت، جو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایک بحران کسی صورت اختیار کرتا ہوا موضوع ہے، اور بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پاکستان کے قرضے جو ہیں ان کے اندر بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کل ہی بلکہ مہتاب حیدر صاحب نے دی نیوز اخبار کے اندر جو ان کی خبر چھپی، اس میں کہا کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں اس کی آمدنی کے 85% تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ بھارت میں یہ 51% ہیں، جبکہ پاکستان بنگلہ دیش کے اندر یہ جو فگر ہے وہ 20% تک ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ مستقل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو ہماری دفاعی ضروریات اور اخراجات ہیں وہ بھی قرضوں کی مد میں ہی اب پوری ہوں گی، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور پاکستان نے حال ہی میں آج ہی بلکہ سائن ہوئے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہاں سے بھی پاکستان کو تقریباً $3 ارب کی جو امداد ہے وہ ملی ہے۔ اس کے لیے بھی بہت کڑی شرائط ہیں، جو کہ اس سے پہلے کبھی سعودی عرب نے نہیں رکھی۔ پاکستان نے ایسی شرائط پہ کبھی قرضہ نہیں لیا، کیوں لیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ 27 اگست کو زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ 27 ارب 22 کروڑ 77 لاکھ ڈالر تھے، لیکن 2 مہینے کے بعد، یعنی کہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں، 22 ارب تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی الارمنگ چیز ہے پاکستان کی معیشت کے لیے۔ جو شرائط پہ قرضے لیے ہیں اس میں ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ سعودی عرب 72 گھنٹوں کے اندر اندر اپنا جو قرضہ ہے جو پاکستان کو انہوں نے $3 ارب جو رکھنے کے لیے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1.2 ارب جو ہے مؤخر ادائیگیوں کے ساتھ تیل کی فراہمی کا جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بھی ہے۔ 72 گھنٹوں کے اندر معاہدہ ختم ہو سکتا ہے $3 ارب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب نے $3 ارب کا قرضہ لیا ہے، یہ 4% شرح سود کے اوپر دیا ہے پاکستان کو، جو کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح اتنی بلند جو سطح ہے اس کے اوپر شرح سود کے ساتھ جو ہے پاکستان کو نہیں دیا گیا۔ بہت ساری اس کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، اخبارات کے اندر یہ خبر چھپ چکی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان کے جو فنڈز تھے کرونا کے، ان کے اندر بھی 40 ارب روپے کی بے قاعدگیاں جو ہیں ان کا انکشاف ہوا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ، پاکستان کے بہترین معاشی تجزیہ نگار، لکھتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ جو قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اعتبار سے کتنے خطرناک ہیں، اور کیا کچھ کمپرومائزز ہو سکتے ہیں پاکستان کے دفاع کو اگر دیکھا جائے؟ اس معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے جو انٹروڈکشن میں جو بات کی، ایک بہت اہم بات کا اشارہ آپ نے کیا کہ ہمارے جو ملک میں جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو ان کے پاس ریونیوز بچ جاتے ہیں پروونسز کو دینے کے بعد NFC ایوارڈ کے تحت، وہ جو پیسے بچتے ہیں اس سے ہم تقریباً بہت بڑا حصہ اس کا سود پیمنٹ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ کہ ایک سال ایسا بھی گزرا ہے 2018-19 جبکہ 100% ریونیوز سود کی واپس پیمنٹ میں چلے گئے،
अल्लाह का फजल है कि अब हालात कुछ थोड़े से बेहतर हुए हैं और सूद की पेमेंट के बाद हम अपने डिफेंस के अखराजात जो हैं वो 40% रेवेन्यू से पूरा कर लेते हैं, मगर 60% खर्चों से पूरा करते हैं। ये एक नामुनासिब सी बात है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी की अपनी बहुत अहमियत है। हमें इसके पीछे जो है एक सख्त इक़दामात करके कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे जो जरूरियात है सिक्योरिटी के आजकल के हालात को खास तौर पे देखते हुए रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, तो एक लिहाज से ये एक परेशान कुन सी बात है। दूसरी तरफ आप बाहर के कर्जों के जो हमने लिए हुए हैं उनमें बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है और पिछले 5-6 साल में इनकी जो रीपेमेंट यानी कि जो कर्जों की वापसी है उसकी रफ्तार इतनी तेज रही है कि पिछले 5-6 साल में ये 3 गुना हो गए। 4 अरब डॉलर से बढ़कर ये 11 से 12 अरब डॉलर सालाना तक पहुंच गए हैं। और अगर आप इसमें तिजारती खसारा मिला लें जो इस वक्त बड़ी तेज रफ्तारी से बढ़ रहा है, हो सकता है कि 13-14 अरब डॉलर ये हो जाए, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान को अब बाहर से किसी तरह से डॉलर तकरीबन एक तरफ 12 दूसरी तरफ 13-25 अरब डॉलर की सालाना जरूरत है। इसको हासिल करने के लिए हमें जिसे कहते हैं ना हर तरह के कॉम्प्रोमाइज करने पड़े हैं। IMF के साथ हमने तारीख का सबसे सख्त रिव्यू एक्सेप्ट किया है और सऊदी अरेबिया जिसका मैं खुद शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उस वक्त फाइनेंस में था जब बम फटा है और तकरीबन मुल्क दिवालिये के करीब जा चुका था जी। उस वक्त भी सऊदी अरेबिया ने हमारा साथ दिया है, मगर सऊदी अरेबिया के भी फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि डॉलर्स की रेवेन्यू उनकी कम हो गई थी जब कोविड के बाद डॉलर की ऑयल की प्राइस गिर गई थी। बिल्कुल, इसलिए वो चाहते हैं कि गारंटी। तो डॉक्टर साहब, अभी आपको क्या लगता है, बिल्कुल हमेशा से सऊदी अरब ने पाकिस्तान का मुश्किल हालात के अंदर साथ दिया है, मगर अभी क्या लगता है क्यों पाकिस्तान ने इन कड़ी शराइत को कबूल किया कि 72 घंटे में खत्म हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है, ताखिर से पेमेंट अगर हुई तो डिफॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान। फिर बहुत सारी यानी कि इसके अंदर शराइत जो मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है मगर आपके इल्म में है, बहुत सख्त शराइत है ये। देखिए, बात ये है कि मेरा अंदाजा ये है, हालांकि इस पे कोई ऑफिशियल बात नहीं आई है, कि सऊदी अरेबिया से जब बात हुई थी शायद उन्होंने ये कहा था कि हम आपको पैसे उस वक्त देंगे जब IMF के साथ एग्रीमेंट आपका हो जाएगा और बोर्ड की अप्रूवल भी हमें गारंटीड हो जाएगी। हुआ ये कि इसमें अब काफी वक्त लगेगा, इसलिए कि बोर्ड की मीटिंग तो जनवरी के महीने में होगी 12-13 तारीख को। अगले जो 6 हफ्ते हैं उसमें इस अनसर्टेनिटी की वजह से रुपए की कदर में गिरने का खतरा बहुत मौजूद है। तो पाकिस्तान ने ये कहा है, देखिए आज इतना फायदा हुआ, स्टॉक मार्केट को 1200 पॉइंट बढ़ा जो कि सबसे बड़ा इजाफा है, और वो सऊदी अरेबिया के पैसे आने की खबर। तो सऊदी अरेबिया ने अपनी पोजीशन गारंटी की है कि खुदा न खास्ता अगर IMF के साथ कोई बात आगे नहीं बढ़ती है तो उनके पैसे जो हैं वापसी उसकी गारंटी होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये अगर इसी तरह कर्जे बढ़ते चले गए और डॉलर की कीमत में भी इजाफा होता चला गया, रुपया गिरता चला गया, तो फिर क्या सूरत हाल होगी कर्जों की? और आप देखिए रीजन में सबसे ज्यादा जो है वो हमारे इस वक्त मुआशी सूरत हाल खराब है और हमारे ऊपर सबसे ज्यादा कर्जे। ये तो बात आप बिल्कुल मुनासिब कह रही हैं। एक और मुल्क है जो हमसे भी थोड़ा आगे है परेशानी के लिहाज से हमारे इलाके में, और वो है आपका श्रीलंका जी। श्रीलंका भी IMF प्रोग्राम में भी रहा है और काफी मुश्किलात उनके साथ भी मौजूद हैं। अलबत्ता हिंदुस्तान और बांग्लादेश की पोजीशन काफी बेहतर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगरचे IMF का प्रोग्राम आगे बढ़ता भी है तो ये जो इस वक्त का प्रोग्राम है वो सितंबर में खत्म हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अपने आखिरी साल में क्या फिर वापस IMF के पास जाना चाहेगी, इसलिए कि आम तौर पे जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो आखिरी साल में अपनी पॉलिसीज इस तरह करते हैं कि एक्सपेंशनरी हो, जिस तरह हमने 2017-18 में देखा था। तो इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। एक तरफ ये कि सख्ती बहुत मुश्किल
आखिरी साल, और दूसरा ये कि पैसों की तो जरूरत, 25 अरब डॉलर कहां से लाएंगे। तो इसलिए हालात बहुत परेशान कुन हैं, और हम सब बस ये दुआ करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे बरामदात में इजाफा हो, दरामदात कुछ कम हो। कुछ ये अच्छी खबर आई है कि कीमतें कुछ कम होना शुरू हुई हैं, तेल की कीमत कम हुई है। अब देखिए आगे चल के क्या होता है। जी, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हुई। सर, जाते जाते ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि अब कल से मुल्क भर के ताजर कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने धरना देंगे या एहतजाज करेंगे, और हम मिनी बजट का सुन रहे हैं। 350 अरब रुपए के टैक्सेस की बात हो रही है, इस तरह के और भी टैक्सेस की बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए मिनी बजट, बजट पे बजट, या फिर कोई जो टैक्सेस में इजाफा है ये और ज्यादा सूरत हाल को अनार्किक नहीं बना देगा? जहां परेशान कुन बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। साल के बीच में इस तरह जो हुकूमत कर रही है, इसलिए कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट मार्च में हुआ था उसमें यह था कि हम सेल्स टैक्स में एग्जेम्पशंस और जो कम रेट हैं वो हटा देंगे और 17% पे ले आएंगे। बहुत से ऐसे एसेंशियल आइटम्स हैं जो इसके नतीजे में उनकी कीमतों में इजाफा होगा। दवाइयां हैं, कपड़े हैं, स्टेशनरी है, मशीनरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे अफरात-ए-ज़र पर बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ IMF के कहने पर, ताकि बजट का खसारा मुनासिब रहे, हुकूमत ने अपने डेवलपमेंट के अखराजात जो हैं वो भी 200 अरब कम कर दिए हैं। और तीसरी तरफ हर महीने 4 रुपए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा, और अगर कीमतें इसी लेवल पे रही और कुछ नहीं ज्यादा गिरी तो जून के महीने तक हो सकता है तेल की कीमत 10-15% और बढ़ जाए। तो लिहाजा अफरात-ए-ज़र बढ़ने की परेशानी हम सबको है, और दूसरी तरफ जो इकोनॉमी में थोड़ी सी तेज रफ्तारी आई थी वो भी कम होते हुए नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब, बहुत तफसील से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल जो है वो क्या है और इसका असर पाकिस्तान के अवाम पे पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान की सियासी जमातों से भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब कादिर मंदुखेल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली है। हमारे साथ मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, रुकने सूबाई असम्बली पंजाब, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ जाहिर है कि जी मौजूद है हमारे साथ इस वक्त चीमा साहब भी, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कादिर मंदुखेल साहब, जाहिर है कि ये जो सूरत हाल आपके सामने आई है, इससे क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि अवाम ये चाहेंगे कि उनका गम और गुस्सा जो है वो सियासी जमातों के जरिए से बाहर आए? तो हमने देखा है कि अपोजिशन अभी तक अवाम की तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर रही। इस हवाले से बहुत शुक्रिया। आप क्या चाह रही हो कि तवक्कुआत किस तरह हो? हम बिल जलाएं, हम सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करें, हम PTV पे हमला करें, हम पुलिस अफसरान को तप्पड़ मारे, हम लोगों को ऊंडी का तरगीब दे, क्या मतलब क्या करे अपोजिशन? आप मुझे बताएं। जो कौमी असम्बली में या मुख्तलिफ मीडिया, देखिए मैं बताऊं, जो एक जमहूरी तरीकार है उस तरीका तो हम अपना रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब पहले दिन से, कल भी हमारी यूम तासीस से पेशावर में जलसा है, वो कि हमें PTI हुकूमत ने इजाजत नहीं दी है, मगर हम कर रहे जलसा। क्या करें, हम भी प्रेशर में, प्रेशर इस वजह से आवाम की, जैसा आपने सवाल उठाया इस तरह लोग उठा रहे हैं कि आप खामोश क्यों हैं, लेकिन आम आदमी को ये बातें समझाना बड़ा मुश्किल काम है कि हमारा रोल क्या हो सकता है। हम लाकानूनियत पे, गैर जमहूरी हरकतों पे हम न करेंगे, न हमारी कोई ये तरबियत है। सवाल ये है कि ये सारी चीज जो हो रहा है, लेकिन ये सारे मुकाफात अमल है। आपको याद होगा कंटेनर पे चढ़ के क्या क्या वादे किए, अगर वो न कर दे इसी तरह चला दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज पे तो कम से कम मुझे बड़ा दुख है पाकिस्तानी आवाम का, और जो महंगाई है, जो आपके सामने अभी पाशा साहब ने जो तफसीलात बताई है, लेकिन कम से कम PTI का चेहरा तो आवाम के सामने आ गया। सर अब ये जो दावे किया था वो तो आ गया सामने कि उन्होंने जो बढ़के मारे थे, जो कुछ कहा था वो सब के सब झूठ निकला। तो सवाल ये है, लेकिन उसके लिए भी यकीनन हमारी दुआ है, यकीनन हमारी कोशिश है कि अल्लाह करे पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ जाए, बाकी ये महंगाई खत्म हो जाए। और अभी देख रहे ये भी तो ऐसी एक हुकूमत है, अब देखिए पेट्रोल अभी पाशा साहब ने कम हो गए, अभी ये कम क्यों नहीं कर रहे? कुछ जैसे आप कह रहे हैं ना, तो जैसे 40 अरब रुपए की आज ही खबर आई कि वो खुद बुर्द उसके अंदर हुआ है, और ऑडिटर जनरल की
یہ رپورٹ ہے کسی حکومت پاکستان کا حکومت پاکستان کی یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے، لیکن اگر عام حالات میں آئی ہوتی تو اپوزیشن، اگر خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے اس وقت سپریم کورٹ میں گئے ہوتے. آسما جی آپ یہ چیز نہ دیکھیے، آپ نے کبھی پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی حکومت کے ہوتے ہوئے آپ نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوگی. ان کی جب حکومت ہے تو یہ حال ہے، جب یہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے تب تو کھاتے اور کھولیں گے آپ کے سامنے. سارے میں نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں، جو پرانی کرپشن تھے، چاہے دوائیوں کا تھا، چاہے آٹا کا تھا، چینی کا تھا، سارے کیا ہو گیا، ختم ہو گیا بھائی. اچھا یہی بات آپ کے پاس بھی کہ اپوزیشن سے لوگوں کی توقعات ہے، اور اپوزیشن توقعات پہ میں یہ بات مندوخیل صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو کہ اپوزیشن دیکھتی ہے لیکن وہ قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. لیکن آپ متحد تو ہو سکتے ہیں. ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے، ابھی 6 دسمبر کو ہوگا، تاریخ پہ تاریخ ہے، کوئی لائے عمل آپ کے پاس نہیں ہے. بہت شکریہ آسما، یہ میں نے سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی زیادتی ہے. ابھی پرسوں بھی آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لاڑکا منع میں بہت بڑا جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج تھا اور ایک بہت بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا. بالکل مندوخیل صاحب درست کہہ رہے ہیں. اب ہم جو ہے وہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ کھینچ کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیں. اب یہ جس ارسطو نے کہا تھا، جس اپوزیشن لیڈر نے، ہم وہ نہیں کرنا چاہتے، ہم وہ نہیں کہنا چاہتے. لیکن اس میں باقی کچھ چیزیں جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ آپ کو کوئی حیرت ہونی چاہیے. کرونا کا جو غبن ہوا ہے فنڈ کے اندر، جو حکومت میں آنے سے پہلے ہماری زکوٰۃ اور خیرات کھا گئے تھے اور آج تک ان کا اس کا ڈکار نہیں لیا، اور آج تک جو ہے الیکشن کمیشن ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ جو آپ نے پیسے جو ہے وہ آپ نے فورن فنڈنگ کے نام پہ لیے تھے وہ آپ نے کہاں لگائے، ڈکلیئر نہیں کیے. لیکن چونکہ ابھی ان کو نہیں پوچھا جا رہا، ان کے اتنے بڑے، ہر روز ایک ڈکیتی کا کیس آتا ہے، لیکن ان کو کوئی دیکھنے کے لیے پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ہم تو ڈسے ہوئے ہیں پہلے ہی. ہم تو مطلب یاد کیجئے نا کہ اگر عمران خان صاحب کا فیک این او سی مان لیا سپریم کورٹ کے اندر، کہا کہ فیک این او سی ہے، کہا کہ منی ٹریل جو ہے وہ وایا راشد خان آئی ہے، اور وہ سب کچھ مان کے ان کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا ملک کے وسیع تر مفاد میں. تو اس ملک میں وسیع تر مفاد میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے، وہ اب اس کے اوپر میرا خیال ہے بات کریں گے تو شاید وہ تھوڑی سی زیادہ چیمہ صاحب. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، جی ایک منٹ میں ایک بات پوری کر لوں. جی. یہ صرف یہاں کی آپ جو ہے وہ 40 ارب، اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے. یہ رپورٹ دبا کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے چھپا دی تھی کہ رپورٹ جاری نہیں کی جائے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ساری جماعت، ہر حکومت جاتی ہے، لیکن جو یہ کر رہے ہیں، جو شرائط یہ مان رہے ہیں، ابھی آپ کو پاشا صاحب نے بھی بتایا کہ، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں $60 کے قریب جو ہے پیٹرولیم پرائسز میں کمی ہو گئی ہے. لیکن آپ کے مشیر خزانہ بتا چکے ہیں آسما بی بی کہ $30 تک انہوں نے پیٹرولیم لیوی لے کے جانی ہے. جی 4 روپے ہر مہینے کا وہ ہے، اضافہ ہوگا تو لیوی جی ظاہر ہے. لیکن بالکل صحیح بات ہے، عوام کے اوپر ایک پریشر پڑ رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو وہ پریشر لینا ہے. چیمہ صاحب ابھی تو یہ 40 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے بے ضابطگیوں کی، اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے دوائیوں کے اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں، آٹے کا. اس کے اوپر کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ نوٹس لیں گے، یہ جو 40 ارب کی خرد برد سامنے آئی ہے؟ دیکھیں اس کا ہر صورت جائزہ لیا جائے گا. بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان، پہلے تو ایک بات آپ کہہ رہی تھی کہ پہلے کبھی اس طرح کی رپورٹیں نہیں آئی تھی. قادر مندوخیل صاحب شاید بات کر رہے تھے کہ کبھی پہلے اس طرح کی رپورٹیں نہیں آئی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ سربلند اختر رانا آڈیٹر جنرل آف پاکستان تھے مسلم لیگ نون کے دور میں. تو آپ کبھی ان کی رپورٹیں نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو ضرور پتہ لگ جائے گا کہ کتنی وہ تقریباً، میں نے تو کوئی رپورٹ ایسی نہیں دیکھی جس میں 150 ارب سے 125 ارب سے 140 ارب سے کم کی کوئی رپورٹ آئی ہو. اس سے بڑی رپورٹیں ہی تھیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ جو 2 رپورٹیں 2017 میں تھی، 2016 میں تھی، 2018 میں تھی، اور آج 2019 میں 20 میں 21 میں اس میں کیا ہے. اس میں جائزہ لینے والی بات خاص یہ ہے کہ چونکہ کرونا واز این یو کین سے کہ ایک پینڈیمک تھا اور اچانک آیا، تو اس میں ارجنسی کافی، دیر آر مینی ٹائپس آف ارجنسی. اب جو بھی چیز آپ کہہ رہے پیپرا رول سے ہٹ کے آپ کریں گے وہ ایک یو کین سے کہ آ جائے گی اس میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں. تو اگر تو آپ کہہ رہے کوئی ارجنسی ہے اور اس کو کوئی یو کین سے کہ کسی حد تک ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی ٹائمنگ کی، وہ ایک اور بات ہے. اور اگر کہیں بیزلمنٹ ہے تو یہ ڈیفینیٹلی چیمہ صاحب یہ جو آئی ایم ایف نے خود یہ کہا حکومت پاکستان سے کہ آپ اس کو آڈٹ کروائیں. اس کے بعد یہ آڈٹ ہوا، وہ مشروط تھی رقم، اس کے بعد پھر اس کے ہوا، جس کے بعد یہ سب کچھ ملا. 354.3 بلین روپے کے اخراجات ہیں جن کی جانچ پڑتال کی جو تفصیلات ہیں، ریکارڈ ہیں،
वो ऑडिटर जनरल के ऑफिस को नहीं मिल सका, इसके ऊपर हुकूमत नहीं बता सकी कि क्या है। इसमें और भी बहुत सी डिटेल्स हैं, मैं बता सकूंगी, लेकिन ये इतनी बड़ी रकम है, ठीक है, वो उनके अदवार में भी आती रही, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में खुद कवर करती रही हूँ। नो, गलत है। नहीं, इतनी बड़ी रकम नहीं आई, लेकिन आती रही है, एम्बेजलमेंट्स आती है। गलत कह रहे हैं, इस तरह का गबन कभी नहीं हुआ। ये जो है वो आपने हॉस्पिटल के नाम से पैसे लेकर आपने कहा गलत है, ये 40 अरब रुपए गायब है। जी, इसमें आसमा, इसमें मैं समझता हूँ कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो आज आई है, ये भी और आप पहले 17 की या 16 की या 18 की कोई भी सामने रख ले, मुझे किसी पे भी कोई इतराज नहीं है कि कौन सी रखे। मैं हर साल की इस तरह की रिपोर्टें थी, तो हम रख लें तो उस पर प्रोग्राम कर ले, ज्यादा अच्छा होगा। डेफिनेटली आई वुड बी मोर हैप्पी कि इस तरह प्रोग्राम हो जाएगा। अच्छा बेजाब, जैसे ये बड़ा पढ़ के भी आ जाए, ये बड़ा दिलचस्प जवाब होता है कि आप किसी को बोले 40 अरब बोले, उसकी भी किया, उसकी भी किया। अच्छा, अब अपनी बात करो। ये सिर्फ 40 अरब रुपए की, एक मिनट मतलब साहब इजाजत आपकी सिर्फ चाहिए, 40 अरब रुपए की सिर्फ कोरोना की रिपोर्ट है। अभी जो बाकी पूरी वजारतों के अंदर जो इनके खांचे खुले हुए हैं, ये तो आटा चीनी जी का जवाब नहीं दे सकते। ये क्या बात करते हैं, और गलत बयानी की एक इंतहा होती है। अभी हाल ही में चीमा साहब, मैं ब्रेक चाहिए, इतनी डिटेल से झूठ मैं ब्रेक ले लूं। नहीं, इनको जो है वो सच का गुमान। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरूर पूछना चाहूंगी, जिसका जवाब नहीं मिल रहा। ठीक बात है, लेकिन अच्छा अभी तो आज ये बात हुई है, जाहिर है कि हुकूमत है, नोटिस भी लेगी। ब्रेक के बाद मैं जरूर इस पे बात करूंगी। मलिक रियाज साहब के ऊपर भी आज एक लंदन की कोर्ट ने कल जो है वो उनके खिलाफ भी फैसला किया, वो भी पाकिस्तान में पैसे आए हैं, वो भी कहां गए हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीमा साहब, अब जाहिर है कि ये जो अद्वियात का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, फिर कर्जों का भी एक कमीशन बना था, होना तो ये चाहिए कि हुकूमत जो है हर एक की रिपोर्ट, चीनी की किसी हद तक दी मगर अमल दरामद नहीं हुआ, तो कैसे एतमाद बहाल होगा, क्योंकि स्कैंडल पे स्कैंडल तो आ रहे हैं। देखिए, इसमें अपना असमझ में देखें कि ये जो चीनी का स्कैंडल है, चीनी के स्कैंडल में आप कह लें मेन जो लोग इन्वॉल्व थे वो यू कैन से कि आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में हम बार बार कहते हैं कि हम भुट्टो नहीं है, हमने इस मुल्क की इंडस्ट्री को भरल बचा के रखना है। यहाँ पे इन्वेस्टर चाहिए इस मुल्क को, यहाँ पे एक्सपर्ट्स चाहिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आने वाले लोग चाहिए। तो उनके साथ उनको अगर आप इस हद तक डरा दे या पकड़ के अंदर कर दे तो वो चीजें बनती नहीं है। बाकी जितने गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व थे या गवर्नमेंट के करीब थे वो अपने अंजाम को जरूर पहुंचे हैं, किसी का भी लिहाज नहीं हुआ। सो इसमें जो आपका एक बड्डीज़म था, एक अच्छा नहीं चीमा साहब, हुकूमत के करीब गवर्नमेंट का जो बड्डीज़म था वो बड्डीज़म बड़ा टूटा कि यहाँ पे जो भी लोग थे जो इन्वॉल्व थे, मतलब जहांगीर तरीन साहब अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टी के अहम आदमी थे, इसी केस में वो आप कह लें कि फारूक हुए, ऑलमोस्ट यहीं से इख्तलाफात बड़े और प्रॉब्लम हुआ। बाकी आटा जो है, आटे के हवाले से अगर बात करें तो आटे का कोई इशू नहीं था, कभी भी नहीं रहा। ये चंद दिन की बात थी इनकी, ये जो आप कह लें कि फ्लोर मिलर का वो ठीक हो गया। आज भी देखें पंजाब में, केपीके में, जहां जहां भी हम हैं, सबसे बेहतर आटा वहां पे मैनेज हो रहा है। आज भी कराची में से आटा 80 रुपए है, पंजाब में 55 रुपए है। ये एक मैनेजमेंट है और पिछले साल भी ऐसे रहा है और इससे भी ऐसे रहा है। अच्छा। तो तीसरी बात इसमें जो तीसरी बात आपने की है इसमें रिगार्डिंग कमीशन जो बनते हैं, कमीशन दवाइयों की बात की, तो दवाइयों में भी आप कह रहे हैं कि जब तक कियानी साहब नहीं हुए, यू कैन से एग्जामिनेटिंग हुए, उन्होंने वजारत से खुद इस्तीफा दिया और वज़ीर आज़म ने कबूल किया। सर वो सिर्फ इस्तीफा तो नहीं ना, फिर वो तो इतना अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं, सिर्फ इस्तीफे तक तो बात नहीं जाएगी ना। लेकिन उसमें जो इंक्वायरी आई है, उस इंक्वायरी में कियानी साहब जो हैं वो बरी हुए हैं। उस इंक्वायरी में कियानी साहब का कसूर नहीं था। पहले जो पहले के एक डिसीजन था, जिस तरह देखें एक सादा से एग्जाम्पल, तो सही बात है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी थी अरबों रुपए की? मतलब खैर साहब ये बात तो आप पहले के बिजली में जी सर, मैं दोबारा आती हूँ इसके ऊपर। देखिए हुकूमत ये कहती है कि हम कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, ठीक है, इस तरह की चीज का अगले हुकूमत पे या अगले बंदे पे डाला नहीं जा सकता। हाँ, तो कियानी साहब ये डाला नहीं जा सकता था, लिहाजा आज वो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मंदुखेल साहब, लेकिन जब इशू आया तो उस वक्त उन पे सब उन्होंने कहा बरतरफ हो गए, अंजाम को चीनी स्कैंडल के भी लोग गवर्नमेंट में पहले कभी नहीं। जी देखिए, पहली बात तो ये जिस शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बात कर रहे हैं, उसकी आज से 45 साल पहले स्टील मिल उन्होंने बंद कर दी, बल्कि बेचने पे आ गए। अगर आप मेगा प्रोजेक्ट ले, एटम बम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं,
वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के दौर में या बीबी शहीद के दौर में या जुल्फकार अली भुट्टो के दौर, इन्होंने क्या किया है? अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपने खुद वो जो एक्सपर्ट थे माशी पाशा साहब, वो आपके सामने मतलब वो बिल्कुल वो रोने वाला मकाम था जो किसे सुना रहे हैं। और करप्शन के दास्ते ये क्यानी साहब इनके, वो करप्शन के सर से लेके पांव तक मलवस, उसको क्यों हटाया वजारत से? मलवस थे तो हटाया। उसके बाद क्या हुआ? ये क्या करते? जब इस तरह को ये 40 अरब का भी बात आपने की है ना, अब आप देख रहे हैं ये खुद ही कागजात इधर उधर करके और उसको वो करेंगे, जबकि IMF के कहने पे सब कुछ हो चुका है। मजाल है किसी को कोई बात आ जाए या कोई चीज में सख्त अल्फाज ज्यादा नहीं करूंगा। बाकी वो आटे की बात कर रहे हैं, वो उज़मा भी बैठी हुई बता दे पंजाब में आटा कितने का है। और लेकिन सरकारी रेट आपके यहाँ तो 80 रुपए का है। नहीं, हमारे यहाँ भी जो सरकारी, जिस तरह वो सरकारी दुकानों पे दे रहे हैं वो हम भी 55 दे रहे हैं। अच्छा। ये अपने NN249 में ट्रक हम रोज मंगाते हैं और लोगों को देते अच्छा। हैं। हाँ, यकीनन जो दुकानदार है कुछ जो ब्लैक पे बेचते हैं वो यकीनन बेचते होंगे। अब सवाल ये है कि चिम्मा साहब ये बता दे, इनने 3.5 साल में किया क्या? एक चीज तो बता दे जो उन्होंने किया सर, है। यानी जिस पार्टी सही करप्शन, तरीके से नहीं बता रहे। कल भी प्राइम ये मिनिस्टर जहांगीर की तरीन खबर में की अखबार में पढ़ी थी, वो ये बात कर रहे हैं कि मुतमईन हमने नहीं है फारिग कि कर दिया है। तो जहांगीर तरीन को उनको फारिग करने वाले थे, फिर एनआरओ क्यों दिए उसने? जहांगीर तरीन के खिलाफ जिस कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई थी, उस कमीशन के बेस पे मुकदमा दर्ज हुआ, उसने जमानत लिए और जमानत वापस ले ली। अच्छा, लेकिन क्योंकि उसका- इनके अदारे, क्योंकि ठीक। क्या किया उन्होंने? ये क्या करते हैं? केस तो दाखिल कर लिए, उधर जाके सरकारी वकील FIA सबको बोल दिया भाई पैरवी न करे, उसने बेल वापस ले ली है। अच्छा। मेरे 28 साल हो गए वकालत करते हुए, यकीन करेंगे मैं हल्फिया कह रहा हूं, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा। अच्छा। अब ये इस तरह करते रहेंगे। अच्छा लेकिन अच्छा उज़मा, ये जो बात कादिर साहब करें, यहाँ वैसे मेरे कान में बताया गया कि 75 रुपए आटा है। मैंने तो खैर आज ही मंगवाया 1700 कहाँ पे? रुपए का। नहीं, मैं इस्लामाबाद में, नहीं, मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, 1700 रुपए मैंने 20 किलो का आटा दुकान से मंगवाया। 55 रुपए की मिलती है। नहीं मगर सर हो सकता है मैं ऐसा। बताती हूँ। वो तो सरकारी हम भी दे रहे हैं ना, वो तो हम भी सरकारी दे रहे हैं ना। हाँ उज़मा, नहीं मैं बताती हूँ। देखिए इनका तो प्रॉब्लम ये है कि वो पता नहीं कि वो कहते हैं ना गिट्टे जोड़ के झूठ बोलते हैं या खोल के झूठ बोलते हैं। पता नहीं इनका कमाल है कि इतनी डिटाई से झूठ बोलते हैं कि अगला बंदा हैरान हो जाता है कि इतना भी झूठ बोला जा सकता है। 880 रुपए इनकी अपना सरकारी रेट है जो थैले का, और वो थैला जिसके अंदर जो रोटी पकती नहीं है और लोग जो है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो मिलता है जो लोग वहीं फेंक के चले जाते हैं, वो खाने के काबिल नहीं है। वो इनका अपना रेट है। 1100 रेट है, आपको पता नहीं है? 1100 रेट है भाई, 1100 इस तरह। अच्छा। सरकारी रेट है, आप इतना भी नहीं पता। आप सरकारी रेट है, सरकारी आपने अरेस्टू बना फरमा लिया ना, आपने अरेस्टू बना फरमा लिया। इनको चुप कराइए। अच्छा, इनको जी, तमीज जी, सिखाइए। जी, 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 मैं सब अभी सुन सभा लो। स्काइप पे नहीं हूँ। पिछली दफा इन्होंने बहुत बदतमीजी की थी। नहीं, और मैं नहीं, स्काइप पे प्लीज, थी, मुझे प्लीज, समझ नहीं, आया था। मेरे इस दफा प्रोग्राम पे नहीं मैंने होती इनकी बदतमीजी, बातें प्लीज। सुन ली है। इनको तमीज से बात चलिए, आप करनी अपनी पड़ेगी। बात तो और करें। अगर नहीं सुननी ठीक है। आती तो ये सीख ले जा सकते हैं। जी, जी। मैंने जो कहना है मैंने कहना है। ना मुझे इनकी आवाज से डर लगता है, ना मुझे इनके नाम से डर लगता है। और इस वक्त आटे की सूरत मैं हाल, रेट बता रहा हूं, वो आम रेट आदमी गलत से है पूछिए। आपका। इनको ये जो सरकारी खा रहे हैं, ये जो सरकारी खा रहे हैं सुबह शाम, बड़े इंजाम को पहुंचे। जहांगीर तरीन को जो है मनी लॉन्ड्रिंग का हमने जो है वो गलती से जो है FIA ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया था, वो छूट गए, वो अंजाम को पहुंच गए। खुसरो बख्तियार हाशिम जवाब वक्त आज भी जो है वो हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर बैठे हैं, वो अंजाम को पहुंच गए। नदीम बाबर अंजाम को पहुंच गए, गुलाम सरवर अंजाम को पहुंच गए, फरदौस आशिक अवान अंजाम को पहुंच गई, अच्छा। आमिर कियानी अंजाम को पहुंच गए। मतलब किस किस का नाम? डॉक्टर जफर मिर्जा अंजाम को पहुंच गए। अंजाम को सिर्फ एक शख्स को पहुंचना है अब, जिसका नाम है इमरान खान। अच्छा, जो इन तमाम ये तो अब आप लोग अपने देखिए ना, कारोबार अपोजिशन चला रहे हैं। कितना एक मिनट, संजीदा, आप एक मिनट, देखिए आप एक अपोजिशन मिनट, संजीदा हो तो प्लीज। कोई आईनी तरीके से होती है ना। अगर अपोजिशन इसी तरह से लड़ती भिड़ती रहेगी तो कौन किसके अंजाम को कौन पहुंचेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है ना नहीं, उज़मा। देखो बात ऑपोजिशन की यही है। हाँ। ये आखिर ये लाए तो गए हैं ना, जैसे भी आए लाए तो गए हैं ना। लाने के बाद अगर कर नहीं सकते कुछ, अगर तुम आम आदमी को दवाइयों में 600% का इजाफा, अच्छा। जो है वो इस वक्त घी और तेल की कीमत में आपको पता है कि 350 रुपए का इजाफा हो गया है इन 3 सालों के अंदर। खुद के कारोबार चमक रहे हैं सबके, यहाँ जितने बैठे हैं ना, इन सबके कारोबार कहां से कहां पहुंच गए। अरबों रुपए की दिहाड़ियां लग गई इन सबकी, और बेड़ा गर्क हो गया हमारा। बिजली की कीमतों में इजाफा हमारा, पेट्रोल की कीमतें हमारी। चलिए अभी देखते हैं ना कि NA133 में शायद पीपल्स पार्टी और आपका है, PTA वहां पे नहीं है, लेकिन एक अवाम की अदालत में जो इमीडिएटली जाना है इसके फौरन बाद, वो तो NA133 है। ब्रेक के बाद उस पर भी बात करेंगे। वहां पे भी बहुत सारी इल्जामात की सियासत जो है इस वक्त चमक रही है दोनों जमातों के बीच में। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये मंदोखिल साहब, अब आपका एक अहम आ रहा है मार्का लाहौर NA133 में, जिसमें कुछ वीडियोस भी हम देख रहे थे कल सोशल मीडिया पे। पता नहीं अब उसकी सेहत क्या है उन वीडियोस की, लेकिन बहरहाल ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में अब वैसे ही है जैसे 90s में एक दूसरे के आमने सामने थे, इस हल्के की हद तक। नहीं, हम जीत की इलेक्शन उम्मीद भी है? ऐसे ही होंगे। हाँ, इसमें तो कोई अर्ज नहीं है। हम तो पहले भी कहते रहे कि भले हम एक इत्तेहाद, हमारे एक अर्जी बनी थी जो कि नहीं चल सकी, लेकिन आज भी पार्लियामेंट की सतह पे हम नून लीग के साथ बाकी तमाम पोजिशन में एक साथ थे। चाहे मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल आए, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब दोनों एक साथ आए थे, चाहे वो मजदूरों को निकालने का हुआ या असेंबली के अंदर हुआ, तमाम इशू पे हम हमेशा एक साथ रहे। तो लेकिन ये जो वीडियो की सेहत है इसके ऊपर तो बहुत से लोग बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी वीडियो किया की है। वजह से सुप्रीम कोर्ट की सेहत पे बड़ा फर्क पड़ा है। नहीं, वो दूसरी वीडियो नहीं, मैं आपके ये जो हल्के की वीडियो, हल्के में आई है पैसे लेने वाली, मैं उस तरह पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी वीडियो की दूसरी ऑडियो की वीडियो बात करें। देखिए क्या तमाशा बन गया पाकिस्तान में। एक, अगर मैं इस वीडियो से शुरू करूं, इस वीडियो में क्या है, बड़ा आसान सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या इलेक्शन कमीशन ने उसमें एक्शन लिया है, तो ये तो मैं कहता हूं 2 घंटे के अंदर फैसला हो सकता है। वजह ये कि इस दफ्तर का पता लगाया जाए, चाहे पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, किसी पार्टी का, और वो जो मर्द खवातीन जिसमें नजर आते हैं उसका पता लगाया जा सकता है। तो ये तो बड़ा आसान सा हल है और हमेशा के लिए बात भी खत्म हो जाए, इससे थोड़ा पीछे चले जाए। हाँ जी, अच्छा, निसार साहब का वो उनकी ऑडियो के ऊपर भी आज चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने अहम दिए स्टेटमेंट। नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं दिए, वो एक हमारे सिंध के उकलाए, उन्होंने केस दाखिल किए, पिटिशन, उसके ऊपर उन्होंने नोटिस किए वफाकी हुकूमत को 8 दिसंबर तक उसने वो जवाब मांगा। मेरा सवाल ये है कि इसको ले लो, अगर इसे थोड़ा सा साकिब निसार का ले लो, राना शमीम का ले लो, जज अरशद मलिक का ले लो, उससे पहले मलिक कयूम का ले लिया, उससे पहले भुट्टो साहब का केस को ले लो। अगर इन चीजों को सुमोटो नहीं लिया गया इस मुस्लिम को, वरना ये चीमा साहब आप क्या कहेंगे? आप ये लेने चाहिए और खास करके जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर जो एक्शन लिया गया उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? लिया जाएगा या नहीं जाएगा तहकीकात? मैं समझता देखें, रिसेंटली 3-4 वीडियो आई हैं, मरियम बीबी की 2 आई हैं, साकिब निसार साहब की आई है और एफिडेविट आया है राना शमीम साहब का। मैं समझता सारे बड़े सीरियस इश्यूज हैं। आप लोग मीडिया से हैं, यहाँ मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह क्वेश्चन हुई है इस पे मीडिया को, स्टेट के पैसे दिए गए मीडिया को, मतलब जियो को डिफरेंट दिए गए, एयरवे को अलहदा दिए गए, समा को अलहदा दिए गए, बिल्कुल डिफरेंट एक स्टोरी है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये बात होनी चाहिए। और फिर दूसरी जो वीडियो आई है उनकी, जिसमें वो बाकायदा डिक्टेट कर रही है मीर शकील रहमान साहब को और मियां आमिर साहब को, इस बात पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सवाल करना है और आप पैसे लेते हैं, ब्राइब भी होते हैं, होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये मीडिया की, देखिए 2 लोगों की इज्जत इस वक्त दाव पे है, एक मीडिया की और दूसरी अदालत की। इन दोनों लोगों को अपनी अपनी सफाई देनी चाहिए, अपनी अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि जनाब मियां आमिर साहब रिस्पॉन्ड करें, एक मिनट से एक सवाल करें। और अच्छा सर, टाइम खत्म हो जाएगा। उसमें मीडिया मैं करूं कि मरियम बीबी की वीडियो के ऊपर उन्होंने एक्शन ले लिया हुकूमत ने, जजेस के ऊपर क्यों दिया और 3 अरब उनको दिया, क्यों दिया? अच्छा, सही बात है, बिल्कुल। ये तो हम तवक्को करते हैं कि आप। दूसरी बात आ गई साकिब निसार साहब, साकिब निसार साहब के केस में मैं समझता हूं कि साकिब निसार साहब का केस इसमें ज्यादा बेहतर होगा कि मरियम बीबी एज ए एविडेंस, एज ए सबूत इसको लेके अदालत में बिल्कुल आना चाहिए जी उस्मा, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। क्या आप ऑडियो वीडियो से गुजारा करेंगे सब लोग, अदालतें हो, मीडिया हो, कुछ भी हो? उस्मा देखिए पहली तो बात यह है कि अल्लाह की शान है, गंद वाकई बड़ा पड़ा हुआ है। गंद जो है वो जब से तहरीक इंसाफ आई है तब से पड़ा हुआ है। और अभी आज फरूख हबीब साहब ने जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें जवाब जमा कराया है, उसमें उन्होंने हमारे दौर के भी इश्तिहारात बताए हैं और अपने दौर के भी इश्तिहारात बताए हैं। जरा किसी वक्त फारिग वक्त हो तो आप भी जरा चेक कर लीजिएगा, पिछले 3 साल में आपने अपने चहेतों को कितने जो है वो इश्तिहारात दिए हैं। कुछ बेचारे जो है वो सिसकते रह गए। आप वो बात करेंगे मीडिया के बारे में जिन्होंने यहाँ पे साफियों पे गोलियां पड़वाई हैं, उनको अगवा कराया है, आज तक मुदस्सर नारों का जवाब जो है वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आपने अपने प्रोग्राम्स बंद कराए, आपने एंकर्स उठवाए, आपने जबान बंदियां कराई, मुस्बत रिपोर्टिंग कराई, क्या क्या नहीं कराया आपने। और आप हमें बताएंगे, भाषण देंगे बैठ के कि मीडिया को अपनी इज्जत बहाल करनी चाहिए। इस मुल्क में सिर्फ एक शख्स की इज्जत जो है वो एट स्टेक है। NA133 की जो वीडियो